Hello, hi, salam, namaste. A very warm welcome of every one of you on Utkarsh online school platform. This is your mentor Rahul Parmar for the subject economics, and I am here in front of you with a new topic and a very important topic for macroeconomics class 12th. Okay, and the topic name is final goods and intermediate गुड्स, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों नेशनल इनकम कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से. ओके, बिकॉज यू मस्ट हैव टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ गुड्स, the final goods and intermediate goods. The reason being the final goods are always included in domestic and national income, जबकि intermediate goods को हम include नहीं करते हैं national income calculation में. Correct. So what is the basic difference between the final goods and intermediate goods? आज का सेशन उसी पे रहने वाला है. So are you all ready बच्चों? All of you are ready? I hope कि आप लोग सब ready हैं. So let's move my students. So the basic type of goods, I can divide the types of goods into two parts. बच्चों तो goods है that is basically or broadly divided into two parts. The first part is final goods and the second part is intermediate goods, right? First part है final goods and the second part is intermediate goods. The expenditure done by the consumers or the final consumers on the final goods is known as final consumption expenditure or final expenditure, you can say, right? It can be called as final expenditure, whereas expenditure on the intermediate goods is called as intermediate expenditure, right? Intermediate expenditure. Okay, so one question is ready. What do we mean by final expenditure? Expenditure done on the final goods and services is known as final expenditure, whereas expenditure done on the intermediate goods is known as intermediate expenditure. The final goods can be of two types, or I can say the final goods can be purchased by two persons. The first, it will be purchased by the consumers, and the second, it will be purchased by the producers. So when the goods, that is final goods, will be purchased by the consumers, the goods will be called as consumption goods, and the expenditure on consumption goods will be known as consumption expenditure, right? Expenditure on consumption goods will be called as consumption expenditure, right? Whereas expenditure on the capital goods will be called as investment expenditure. Expenditure on the capital goods will be called as investment expenditure, right? So जो final goods है वो दो टाइप की होगी बच्चों. द फर्स्ट टाइप इज कंजप्शन गुड्स एंड द सेकेंड टाइप इज कैपिटल गुड्स. एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स, ऑन द परचेज ऑफ कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. मींस कंजप्शन गुड्स पे जो खर्चा किया जाएगा ऐसी गुड्स पे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे. वेयर एज इन्वेस्टमेंट यानी जो कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा किया जाएगा, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ऐसी गुड्स को हम कहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स, एंड एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. वेयर एज इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है, ओके, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, दैट expenditure on that will be called as intermediate expenditure. Expenditure on that will be called as intermediate expenditure. Now बहुत बेसिक सी ध्यान बात रखिएगा बच्चों, फाइनल गुड्स क्या होती है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है. एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है. ओके, एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, एक बिल्कुल बेसिक सी बात है. ओके, ऐसी गुड्स विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल पर्पस, ओके, विच इज परचेज्ड to be used, okay, to be used as raw material, okay, which is purchased to be used as raw material, okay, or for resale purpose, okay, which is purchased to be used, okay, which is purchased to be used, okay, as raw material or for resale purpose in the same year. Okay, so these kind of goods are known as intermediate goods, right?
एंड फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट, right? Or for final investment. Okay, so final goods are those goods which are purchased by the final users, okay, for the final consumption or for final investment, whereas intermediate goods are those goods which are purchased to be used as raw material or for resale purpose in the same year. Same year में उसको as a raw material यूज करना है हमको, या फिर रीसेल के लिए यूज करना है, ऐसी गुड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. सो यू कैन टेक वेरियस एग्जांपल्स. ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हो. ओके, मान लीजिए अ पर्टिकुलर गारमेंट इंडस्ट्री इज परचेसिंग द फैब्रिक. ओके, सो उस फैब्रिक से दे विल कन्वर्ट व्हाट? दे विल कन्वर्ट दैट इनटू सर्टेन गारमेंट. कुछ रेडीमेड शर्ट बना लिए, पैंट्स बना लिए, ट्राउजर्स बना लिए. ओके, सो दैट फैब्रिक और सम अदर इनपुट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? आर बेसिकली कॉल्ड एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर फॉर दैट पर्टिकुलर फर्म. राइट, सो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, दे हैव परचेज्ड दिस फॉर रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के पर्पज से क्या किया? उन्होंने खरीदा. राइट, नाउ एक आइसक्रीम पार्लर है, दे आर परचेजिंग द आइसक्रीम्स फ्रॉम द सप्लायर्स. राइट, यानी अमूल से किसी एक आइसक्रीम पार्लर ने क्या किया? आइसक्रीम खरीदी. नाउ दैट आइसक्रीम दे आर परचेजिंग फॉर द रीसेल पर्पस, मींस उसको वापस से सेल करना है. सो दैट आइसक्रीम विल बी व्हाट? दैट आइसक्रीम विल बी इंटरमीडिएट गुड्स फॉर दैट आइसक्रीम पार्लर. बट इफ द आइसक्रीम विल बी यूज्ड बाय देमसेल्फ, ओके, उन्होंने खुद ने ही अपने घर में यूज कर ली, तो वो फाइनल गुड्स बन जाएगा. मींस व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स. ओके, व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स. सो आई कैन राइट व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स. ओके, गुड्स जो इंटरमीडिएट है और फाइनल होगी, दैट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंड यूज. अगर उसका एंड यूज जो है, उसका एंड यूज जो है इज फाइनल कंजप्शन, राइट, और फाइनल इन्वेस्टमेंट है, देन द गुड्स विल बी व्हाट? देन द गुड्स विल बी फाइनल गुड्स. राइट, and if their end use is to be used as raw material, okay, or for resale, if the goods will be used as raw material or for resale, then the same goods will be called as intermediate goods. Right, now see bachcho, the next thing is who will be purchasing the intermediate goods. So the main or very basic thing is intermediate goods will be purchased. Intermediate goods will be purchased by producers only. Okay, intermediate goods will be purchased by the producers only, whereas final goods can be purchased by whom? Final goods कौन कौन purchase कर सकता है? Final goods can be purchased by many sectors. Okay, all the sectors can purchase the final goods. Okay, final goods can be purchased by, okay, purchased by, देखो household कर सकता है. Okay, purchased by household. Right, government can also purchase the final goods. Producers can also purchase the final goods. Okay, so machineries, plants, ऐसी जो सारी चीजें एक प्रोड्यूसर परचेज करता है, that is known as investment expenditure for him, but that is final goods, expenditure on final goods. अब अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स पे खर्चा कर रहा है, so that will be called as investment expenditure. but जो हाउसहोल्ड है, अगर वो क्या कर रहे हैं? फाइनल गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं, सो दैट विल बी नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, सो इफ वी आर परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर, ओके, देन इट विल बी कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर अस.
ओके, मींस ड्यूरेबल गुड्स पे हमने क्या किया, खर्चा किया। लेकिन एक प्रोड्यूसर डीप फ्रीजर खरीद रहा है, आइसक्रीम पार्लर वाला डीप फ्रीजर खरीद रहा है, सो दैट डीप फ्रीजर विल बी अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर व्हाट, फॉर द प्रोड्यूसर। ओके, सो लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड more about the final goods and intermediate goods, right? See, so bachcho, the next thing is we have to understand the final goods are what. Now final goods are those goods which are to be purchased by their final users, जिनको ना तो रॉ मटेरियल के लिए चीजें खरीदनी है, ना ही रीसेल पर्पस के लिए खरीदनी है। इफ वी आर परचेजिंग ब्रेड, ओके, then what we people are doing, we are not reselling that bread or we are not using that bread as a raw material, okay, for producing certain final goods. हम उस सैंडविच को बना के मार्केट में नहीं बेचने वाले। We will be consuming that sandwiches, okay, by ourselves. हम खुद क्या करने वाले हैं, वो सैंडविचेस खरीदने वाले, परचेस करने वाले, कंज्यूम करने वाले टेक्निकली, राइट। सो जो फाइनल गुड्स हैं, दे आर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदी है, अगर वो गुड्स रॉ मटेरियल के लिए नहीं खरीदी है, तो वो गुड्स हमारे लिए क्या है बच्चों, एक फाइनल गुड्स है, राइट। सो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव crossed the boundary line of production. Now what is this cross the boundary line of production? Okay, जैसे ही उस गुड्स को फाइनल यूजर्स ने खरीद लिया, कंज्यूमर ने खरीद लिया, किसी एक प्रोड्यूसर ने एज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, गवर्नमेंट ने खरीद लिया, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने खरीद लिया, किसी ने भी उसको खरीद लिया, एनजीओ ने खरीद लिया, ओके, नाउ दे आर यूजिंग इट फॉर फाइनल कंजप्शन। ओके, वो इस गुड्स में, यानी इस गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल या फॉर द रीसेल पर्पस नहीं खरीद रहे हैं, मींस उसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो उस गुड्स को माना जाता है दैट गुड्स हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, राइट। मींस उस गुड्स को या तो फाइनल कंजप्शन के लिए खरीदा गया है, या दैट हैज बीन परचेज एज अ फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, मान लीजिए एक मिठाई वाला जो है, ओके, स्वीट्स शॉप मेकर जो है, दैट इज परचेजिंग मिल्क फॉर मेकिंग स्वीट्स आउट ऑफ इट, सो दैट मिल्क परचेज्ड बाय हिम इज एज अ रॉ मटेरियल। वो क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल है। बट व्हेन द सेम मिल्क विल बी परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड्स, then households are purchasing that milk for what purpose, for the consumption purpose। अब household उसको क्या करेगा बच्चों, consumption purpose के लिए यूज करेगा। हम उससे टी बना सकते हैं, कॉफी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, और whatever we can do with that particular milk, right? So वो मिल्क जो है वो हमारे लिए क्या है बच्चों, फाइनल गुड्स है। बट when it will be purchased by the sweets मेकर, तो उसके लिए क्या है बच्चों, वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स है। रीजन बीइंग, अब वो उसमें और वैल्यू ऐड करेगा। मींस अभी तक उस मिल्क ने बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा, अब वो मिल्क अपना शेप चेंज करेगा और स्वीट्स बन जाएगा, एंड दैट स्वीट्स विल बी सोल्ड टू द कंज्यूमर्स, राइट। सो क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स वही होती है विच हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। नाउ सी, एंड विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, जो फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए क्या है बच्चों, रेडी है। डेफिनेशन पे जाओगे, देन यू हैव टू राइट दिस, कि ऐसी गुड्स विच हैज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है। सो आई कैन राइट नो वैल्यू एडिशन इज लेफ्ट, नो वैल्यू एडिशन इज लेफ्ट। ओके, सो मैं फार्मर्स के पास गया और फार्मर्स से मैंने वीट खरीद लिए, ओके, मींस उस वीट ने बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली। बट एक फ्लावर मिलर ने उस फार्मर से वीट खरीदे, मींस अब वो उस वीट को कन्वर्ट करेगा किसमें, फ्लावर में, एंड देन ही विल बी सेलिंग इट इनटू द मार्केट, राइट। सो जो वीट है, सो जो सेम वीट है, ओके, यहां बच्चों एक फार्मर है, ओके, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग वीट, ओके, वीट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, ओके, मान लीजिए 10,000 केजी उसने वीट प्रोड्यूस किए, ओके, आउट ऑफ दिस 10,000 केजी वीट, ओके, 8,000 केजी जो वीट है एंड 2,000 केजी जो वीट है, ओके, दिस इज परचेज्ड बाय फ्लावर मिलर, ओके, एंड दिस इज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ओके, हाउस होल्ड्स थे, जो रिश्तेदार थे उसके मिलने वाले, वो उस फार्मर से क्या करके चले गए, 2000 केजी ऑफ मिल्क खरीद के चले गए। रिमेनिंग 8000 केजी उसने क्या किया, मार्केट में फ्लावर मिलर को बेच दिया। अब ये जो फ्लावर मिलर की परचेज है, ओके, ये जो फ्लावर मिलर की परचेज है, दिस विल बी नोन एज इंटरमीडिएट
गुड्स एज दिस फ्लावर मिलर हैज परचेज द व्हीट एज रॉ मटेरियल, इस फ्लावर मिलर ने इस व्हीट को एज अ रॉ मटेरियल खरीदा है, ही विल बी कन्वर्टिंग दिस व्हीट इनटू द फ्लावर, राइट? एंड नाउ दिस 2000 kg विच इज परचेज्ड बाय अस, क्या इसमें मार्केट कोई वैल्यू ऐड करेगा? नहीं, हम इसको सिंपली घर पे ले जाएंगे, इसको ग्राइंड करेंगे एंड वी विल यूज दैट मिल्क wheat for the different purpose. Okay, चपाती बनाने के लिए, पराठे बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए we can use it, right? So this expenditure or these goods are known as final goods. Okay, in this value addition is left, means it has not crossed the boundary line. एक प्रोड्यूसर से, फार्मर से दूसरे प्रोड्यूसर फ्लावर मिलर के हाथ में चला गया, लेकिन यहां ये फार्मर से किसके हाथ में गया? हाउस होल्ड्स के हाथ में गया, मींस फाइनल यूजर के हाथ में गया। फाइनल यूजर्स कौन होते हैं बच्चों? हाउस होल्ड्स होगा, प्रोड्यूसर भी फाइनल यूजर हो सकता है, गवर्नमेंट भी फाइनल यूजर हो सकती है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी फाइनल यूजर हो सकता है। ओके, सो दैट सेक्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। सो ये जो व्हीट है दैट इज रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ओके, एंड इफ इट विल बी परचेज्ड बाय एनी अदर सप्लायर और एनी अदर producer, then these are not ready because that supplier will convert it into different type, right? So which are ready for use by their final users either for consumption, या तो कंजप्शन के लिए रेडी है और या फिर किसके लिए रेडी है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है। ओके, मींस अ रेफ्रिजरेटर ओनली। ओके, मान लीजिए एलजी ने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, ओके, या वोल्टास ने एक डीप रेफ्रिजरेटर बनाया। ओके, अब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, ओके, लगभग 25-30 लोग उसमें हैं, सो हम लोगों ने भी एक डीप फ्रीजर खरीदा, ओके, और एक दूसरे पर्सन ने भी क्या किया, जो प्रोड्यूसर है, एक आइसक्रीम पार्लर है, उन्होंने भी क्या किया, एक डीप फ्रीजर खरीदा, राइट? सो द सेम डीप फ्रीजर विच इज परचेज्ड बाय मी इज नोन एज माय कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, ड्यूरेबल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, right? But if the same deep freezer will be purchased by what? If the same deep freezer will be purchased by that ice cream parlor, okay? आपके मोहल्ले के बाहर जो मिल्क की शॉप है, अगर उसने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, so that refrigerator will be purchased for the investment purpose, right? मान लीजिए हमने एक कार खरीदी, okay? So that is durable consumption expenditure, consumption expenditure on durable goods, right? But the same car will be purchased by any Ola or Uber टैक्सी ऑपरेटर, तो वो उसके लिए क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है। मींस फाइनल गुड्स आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स फॉर ईदर कंजप्शन एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, राइट? सो नेक्स्ट इज फाइनल यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? फाइनल यूजर्स कैन बी कंज्यूमर्स एज वेल एंड फाइनल यूजर्स कैन बी प्रोड्यूसर्स एज वेल। सो इफ द फाइनल गुड्स विल बी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, दैट गुड्स विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स। क्या गुड्स कहलाएंगी बच्चों? वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी, which can be divided into 4 types: durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, and services, right? Whereas if it will be purchased by the producers, then the goods will be called as producer goods, and the expenditure on such goods will be called as investment expenditure. Expenditure on such goods will be called as investment expenditure, and the goods will be called as producer goods. Producer में भी कौन सी? Capital goods. राइट? रीजन बीइंग प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, एक कैपिटल होगी और एक इंटरमीडिएट होगी, राइट? एक कैपिटल होगी और एक इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट गुड्स स्पेसिफिकली कौन सी होती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स होती है। कौन सी होती है? इंटरमीडिएट गुड्स होती है, करेक्ट? चलिए, सो फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज, फाइनल गुड्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ओके, सो ब्रॉडली इफ द फाइनल गुड्स विल बी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स, these goods will be called as final consumer goods, right? And if the same final goods will be purchased by the producers, these will be called as final producer goods. Okay, so again and again I am saying producer goods जो है that can be of 2 types. Final goods 2 types की हैं, that can be purchased by the consumers and that can be purchased by the producers. Producer goods जो है that can be 2 types: final producer goods and intermediate goods. Okay, so producer goods जो है that can be of 2 types: final producer goods, okay, and the next is intermediate goods, correct? Now see, now the next thing is final consumer goods are what goods? Okay, these goods are finally purchased by consumer households. कौन खरीदता है इसको? कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स खरीदते हैं फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपने खुद की वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए। दीज हाउसहोल्ड्स विल बी परचेजिंग सच टाइप ऑफ गुड्स, राइट?
these are called as consumer goods. Expenditure on these kind of goods is known as consumption expenditure, and these goods which are purchased by the final consumers are known as the consumer goods. Okay, examples are what? Examples are milk, sugar, car, okay, refrigerator, TV, etc. ये सारी के सारी क्या है बच्चों? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं, राइट? परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड. एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ओके, एंड दीज गुड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. कौन कौन सी हो सकती है? ड्यूरेबल गुड्स हो सकती है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो सकती है, करेक्ट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकती है. ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो सकती है, एंड सर्विसेज हो सकती है, एंड सर्विसेज हो सकती है, राइट? सो दीज कैन बी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार है, ओके, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, विच कैन लास्ट फॉर 5-10 years. ओके, सच टाइप ऑफ गुड्स विल बी नोन एज ड्यूरेबल गुड्स. ओके, जो जनरली साल भर या उससे ज्यादा रहती है. सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स लाइक क्लोथ्स हैं, ओके, सर्टेन काइंड ऑफ फर्नीचर है, ओके, दैट विल बी फिनिश्ड, ओके, विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जिसका जो लाइफ होता है वो बहुत क्या है? कम है, बहुत ज्यादा लंबा लाइफ नहीं है. सच टाइप ऑफ गुड्स विल बी कॉल्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स. एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स. ओके, ब्रेड है, बटर है, वंस वी विल कंज्यूम्ड, okay, utility will be taken up and that goods will be finished, that will lose its existence. उसका existence क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया. So that is known as non durable goods. And services of what? डॉक्टर्स की सर्विसेज ले रहे हैं, लॉयर की सर्विसेज ले रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं. So these all are called as services, right? So durable, semi durable, non durable and services. So final consumer goods are broadly divided into again 4 parts: durable, semi durable, non durable and services, right? Whereas final producer goods are what? Final producer goods are finally purchased by firms. Who will be purchasing them? Firms will be purchasing them. Producers will be purchasing them, okay? And are used as what? They are used as fixed assets, okay? They are used as fixed assets, okay? So plant and machinery hai, building hai, these all type of goods are known as what? Producer goods. Plant and machinery le lo, okay? Okay, एक कार है which is purchased by any car company, okay, ओला उबर चलाने वाले ने कार खरीदी, so that is fixed assets for him, right? In the process of production, these are called as capital goods. और ऐसी goods को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Capital goods बोलते हैं, okay? For example, machinery, land, tools, etc. purchased by firms, okay? And expenditure on these type of final producer goods by the producer is called as investment expenditure, okay? Is known as investment expenditure. So expenditure on final producer goods by the producer, okay, is called as investment expenditure. By the producer is called as investment expenditure. क्या बोलते हैं बच्चों? That is known as investment expenditure. So producer जो भी investment goods पे, capital goods पे खर्चा करेगा, that is known as investment expenditure. So producer ने land खरीदी, investment है. Producer ने building बनाई, investment है. Producer ने machinery खरीदी, investment है. राइट, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ट्रक्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट है. जेसीबी खरीदी, इन्वेस्टमेंट है. राइट, एक आइसक्रीम पार्लर ने डीप फ्रीजर खरीदा, इन्वेस्टमेंट. एक स्वीट शॉप ने बड़ा फ्रिज खरीदा, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट, राइट? सो वट एवर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, ओके, एक्सपेंडिचर, राइट? एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर व्हाट? दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, राइट? करेक्ट बच्चों. Next is we are moving to understand the intermediate goods. Now I have already explained you that intermediate goods are those goods which has crossed the boundary line of production and which are being purchased to be used as a raw material or for resale, okay? Intermediate goods कौन सी है? Which has not crossed the boundary line of production and which are purchased as raw material or for resale, okay? So which have not yet crossed द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है. सो व्हेन द सेम व्हीट विल बी परचेज्ड बाय द फ्लावर मिलर, मींस इट इज स्टिल द व्हीट इज स्टिल विद द फ्लावर मिलर. वो व्हीट क्या है बच्चों? अभी भी फ्लावर मिलर के पास है, करेक्ट है? सो दैट इज नॉट येट परचेज्ड
क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मींस दैट गुड्स इज स्टिल लाइंग विद सर्टेन प्रोड्यूसर। वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर के पास हो सकता है, राइट। तो जब तक फाइनल यूजर्स के पास नहीं जाता तब तक वो गुड्स क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट, विच आर परचेज्ड ईदर फॉर रीसेल और एज रॉ मटेरियल, जो या तो रीसेल के लिए खरीदा जा रहा है और इट इज बीइंग परचेज एज अ रॉ मटेरियल, ओके, फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन के लिए, इन द सेम ईयर बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म, एक फर्म खरीदने वाली है दूसरी फर्म से टू बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, टू बी यूज्ड फॉर रीसेल, ओके, इन द सेम ईयर, सेम ईयर में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी, सेम ईयर में उसको फॉर रीसेल यूज करेगी, ओके, बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म, ओके। सो फर्म ए ने फर्म बी से कुछ खरीदा, सो एक फ्लावर मिलर ने फार्मर से क्या किया, व्हीट खरीदा, ओके, फॉर ग्राइंडिंग दैट, ओके, एंड कन्वर्टिंग दैट व्हीट इनटू फ्लावर। सो वो जो व्हीट है दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर दैट फ्लावर मिलर, right? Now suppose the same flour will be purchased by any baker, okay, so that baker which has purchased the flour from flour miller, उस बेकर ने जो उस चक्की वाले से, फ्लावर मिलर से जो फ्लावर खरीदा है, आटा जो खरीदा है, वो जो आटा है वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। शुगर खरीदेगा मार्केट से, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होगी बिस्किट बनाने के लिए, करेक्ट। So which are not ready for use by their final users, okay? So जब वो व्हीट खरीद लिया किसने, फ्लावर मिलर ने, तो क्या वो रेडी है फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए? नहीं सर, जब वो आटा बनेगा तब वो यूज होगा, ओके। सो विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ओके, राइट। एंड वैल्यू इज येट टू बी एडेड, मींस अभी व्हीट तो बन गया, अभी उसका आटा बनना बाकी है, ओके। व्हीट खरीदा सपोज 20 रुपीज केजी में, अभी इसमें वैल्यू ऐड होना बाकी है, आटा बना के 25 रुपीज केजी में इसको बेचेंगे, राइट। सो सर्टेन वैल्यू इज येट टू बी एडेड, कुछ वैल्यू अभी भी ऐड होना बाकी है, ओके, कुछ वैल्यू अभी भी ऐड होना बाकी है, ओके। सो दीज आर द बेसिक 4 पॉइंट्स विच यू कैन राइट फॉर द इंटरमीडिएट गुड्स, करेक्ट। सी, तो नेक्स्ट थिंग इज, for example, I have written certain examples here, okay, shirts purchased by firm A from firm B for resale, okay। So जो एक रीसेलर होते हैं आपके लोकेलिटी के अंदर, जो भी गारमेंट्स की शॉप वाले पर्सन मिल जाएंगे, दे आर व्हाट, दे आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द गारमेंट्स, दे आर जस्ट द रीसेलर्स ऑफ द गारमेंट, राइट। दे आर परचेजिंग डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट गारमेंट्स फ्रॉम द दिल्ली, फ्रॉम द बॉम्बे, फ्रॉम द पुणे, फ्रॉम द अहमदाबाद और फ्रॉम अदर प्लेसेस जहां पे इन चीजों का प्रोडक्शन होता है, ओके, एंड दे आर सेलिंग इट टू द रेस्पेक्टिव सिटीज एंड देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस, राइट। सो एक फर्म ए ने क्या की, फर्म बी से कुछ माल खरीदा, शर्ट्स खरीदे फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सो ये जो फर्म ए है इसके लिए कैसा एक्सपेंडिचर है, ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, एंड द शर्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स, राइट। सीड्स एंड अदर इनपुट्स परचेज्ड बाय फार्मर्स, सीड्स एंड अदर इनपुट्स परचेज्ड बाय फार्मर्स, ओके, फार्मर्स परचेज कर रहे हैं इसको, ओके, टू ग्रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्लियर। नाउ ये क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज raw material. Now the farmers are purchasing these seeds and other inputs, fertilizers purchase कर रहे हैं, कुछ और purchase कर रहे हैं, then these expenditure or these goods will be called as intermediate expenditure for the farmers, correct. Next is milk purchased by a dairy shop, okay, for resale. एक dairy shop जो है, they are purchasing milk for the resale purpose, right, और milk used by sweets shop फॉर मेकिंग स्वीट्स, ओके, स्वीट्स बनाने के लिए स्वीट शॉप जो क्या कर रहा है बच्चों, मिल्क यूज कर रहा है, या सेम मिल्क अगर कौन खरीद रहा है, सेम मिल्क खरीद रहा है एक डेयरी वाला, किससे, किसी पर्टिकुलर मान लीजिए डेयरी फार्म से, ओके, एक बड़ा डेयरी फार्म है उससे मिल्क खरीदा जा रहा है, एंड एक डेयरी शॉप है आपकी लोकेलिटी में लगा के बैठा है, और दैट पर्सन इज एंगेज्ड इन रीसेलिंग दैट मिल्क, ओके। सो विलेज एरियाज से या बड़े फार्म से मिल्क खरीद के लेके आए एंड छोटे एरियाज के अंदर लाके उस मिल्क को सेल कर दिया, या रूरल एरियाज से मिल्क खरीद के लेके आए एंड अर्बन एरियाज में उस मिल्क को रीसेल कर दिया, राइट। सो मेनी पर्संस आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, सो दैट मिल्क परचेज बाय सच डेयरी शॉप्स, okay, will be called as intermediate expenditures, right. So I hope that you all are getting my point, correct or not, clear है बच्चों सबको। चलिए, so the next thing is difference between the final goods and intermediate goods. What are the difference between the final goods and intermediate goods? Final goods and intermediate goods के बीच का basic difference क्या है, right? So next see बच्चों, फटाफट से इसको देखते हैं हम लोग, right?
मीनिंग की बात करते हैं, ओके। फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजप्शन or for final investment. These can be purchased by the final consumers as well and final producers as well, right? So goods purchased by final consumers are known as final consumption expenditure and by producer is known as final investment expenditure, right? Intermediate goods refer to those goods which are used for resale, okay, or for further production in the same year as raw material, right? So that goods will be called as intermediate goods, correct? Next, see included in, right? Now the final goods will always be included in both national income and domestic income, whereas value of intermediate goods is already reflected in the final goods. उस intermediate goods का value final goods में reflect हो जाएगा. That is why they are neither included in national income, right, nor in domestic income. ना तो national income में include होगा, ना ही domestic income में include होगा. Correct? Next, see. डिमांड के बारे में बात करें, सो फाइनल गुड्स की जो डिमांड होती है दैट इज द डायरेक्ट डिमांड, ओके, एंड इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड होती है दैट इज डेराइव्ड डिमांड. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड एंड व्हाट इज डेराइव्ड डिमांड? सी, मार्केट में यू पीपल आर डिमांडिंग द बिस्किट्स, ओके. So biscuit is a final goods produced by any baker or any particular biscuit supplier, right? So when you are demanding the biscuits, so market में जो biscuit producers है वो किसकी डिमांड करेंगे? They will be demanding for the flour and other ingredients, okay? So जो बिस्किट की डिमांड है वो बच्चों कैसी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड है. कैसी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड है. लेकिन जो फ्लावर की डिमांड आई, बिस्किट की डिमांड बढ़ने की वजह से जो फ्लावर की अदर इंग्रेडिएंट्स की डिमांड बढ़ी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डेराइव्ड डिमांड, ओके. सो इन दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन व्हेन द डिमांड ऑफ सैनिटाइजर्स हैज बीन इंक्रीज्ड, ओके, डिमांड जो है सैनिटाइजर्स की क्या हुई बच्चों? इंक्रीज हुई. सो सैनिटाइजर की जो डिमांड है दैट इज डायरेक्ट डिमांड. बट उस सैनिटाइजर को बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज होती है, ओके, सो द industry which is engaged in the production of sanitizer, they will demand those inputs from other firms, ओके, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है सैनिटाइजर बनाने के लिए, मास्क बनाने के लिए, राइट. सो उन गुड्स की जो डिमांड होगी वो कैसी होगी बच्चों? डेराइव्ड डिमांड होगी, ओके. सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने से उसके रॉ मटेरियल की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, राइट. सो दीज गुड्स हैव द डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली एंड दे हैव द derived demand as their demand depends on the demand of for final goods, right. Next is value addition. फाइनल गुड्स में किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं लेफ्ट होता. इट इज बीइंग परचेज्ड बाय द फाइनल प्रोड्यूसर्स और फाइनल कंज्यूमर्स, राइट. सो दे आर रेडी फॉर यूज फॉर बाय देयर फाइनल यूजर्स, दैट इज नो वैल्यू हैज टू बी एडेड. कोई भी तरह का वैल्यू एडेड नहीं है. Whereas intermediate goods में value is yet to be added. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, right? So value addition अभी बाकी है मेरे दोस्त, right? They are not ready for use by their final users. Means some value has to be added. गेहूं का, वीट का आटा बनना बाकी है, आटे का बिस्किट बनना बाकी है, बिस्किट का रिटेलर्स के पास आना बाकी है, राइट. या मिल्क का स्वीट बनना सर बाकी है, राइट. सो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जो कि रेडी नहीं होते यूज के लिए, करेक्ट, राइट और नॉट. चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज एग्जांपल्स वी कैन सी. प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें, सो फाइनल गुड्स हैव ऑलरेडी क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, ओके. यू कैन सबमर्ज दिस पॉइंट इन द वैल्यू एडिशन, राइट. They have not crossed the boundary line of production and they are still lying with certain producer. ये अभी भी किसी ना किसी प्रोड्यूसर के पास है जो उसको या तो रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहा है या एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, करेक्ट. नेक्स्ट सी, फटाफट से देखिए इसके एग्जांपल्स. परचेज ऑफ राइस, मिल्क, क्लोथ, ब्रेड एटसेट्रा बाय द हाउस होल्ड, ओके. क्या है बच्चों? दीज आर द फाइनल गुड्स, करेक्ट. मशीन परचेज बाय अ फर्म, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, करेक्ट. स्कूल यूनिफॉर्म परचेज बाय अ स्टूडेंट, कैसा है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, थोड़े समय में जो है यूनिफॉर्म है फट जाएगी ना, राइट. इट विल बी यूज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके. सो कंज्यूमर है, student is belonging to the certain household and they are purchasing school uniform, right. Economics book purchased by a teacher, okay. So suppose I am purchasing an economics book, okay, so that is also final consumption expenditure for me. Intermediate नहीं है, right, क्योंकि मैं इसको रीसेल के लिए नहीं खरीद रहा, रॉ मटेरियल के लिए नहीं खरीद रहा, ओके. कोई भी गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, अपने मन से पूछना, क्या किसी क्वेश्चन ने इसको रीसेल के लिए खरीदा या एज अ रॉ मटेरियल खरीदा? अगर रीसेल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए खरीदा जाए तो वो गुड्स कैसी होगी बच्चों? दैट गुड्स विल बी intermediate goods, else the goods is final goods, right. Vegetables purchased by a consumer, कैसा है बच्चों? Final goods है. Car purchased by
एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, कार परचेज किया जा रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट। कौन करेगा एज एन इन्वेस्टमेंट? नेचुरली हम तो करने वाले नहीं है, वो करेगा कोई ओला उबर कंपनी वाला, कोई ट्रेवल कंपनी वाला। ओके, या कोई फर्म अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए यूज कर रही है, राइट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को देखें, मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल, क्लियरली गिवन है। ओके, कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, तो क्या हो गया बच्चों? रॉ मटेरियल। स्कूल यूनिफॉर्म परचेज्ड बाय सेलर, तो क्या हो गया बच्चों? रीसेल करेगा इसी यूनिफॉर्म को। इकोनॉमिक्स बुक परचेज्ड बाय अ सेलर, क्या करेगा बच्चों? रीसेल करेगा। ओके, वेजिटेबल्स परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट, क्या करने वाले हैं बच्चों? एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहे, सब्जी बना के देंगे, राइट? नाउ कॉटन परचेज्ड बाय थ्रेड मेकिंग मिल, नाउ दे आर यूजिंग द कॉटन और परचेसिंग द कॉटन एज रॉ मटेरियल, राइट? सीड्स परचेज्ड बाय अ फार्मर, ये भी क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल है, राइट? सो आई थिंक this particular video has updated your knowledge regarding the final goods and intermediate goods, right? So stay tuned with us. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you can receive all the notification for all the latest videos, right? So मिलते हैं आप लोगों से in the next video. Till then, bye bye everyone. Thank you so much.